कैलकुलेट होती है, क्या क्या पैरामीटर्स इन्वॉल्व होते हैं. So today we are going to see that with the help of an application with the help of a numerical. So in this problem we have an 18 feet long gate, and the depth of the gate or the width of the gate is 18 feet into the page, and this gate is hinged at point H. We are interested in calculating this force P here that is required to keep this gate closed so that it does not open. We can neglect the friction at point H, which is a hinge, and the weight of the gate. The fluid which is in question is water, and its specific weight is given to us as 62.4 pound per feet cube. So in order to calculate the force at point P, we need to calculate the hydrostatic force acting on this curved surface, so that we'll be able to draw a free body diagram of this gate with the complete information or knowledge about the forces. So what we do is first calculate the hydrostatic force acting on this curved surface or curved body. Is the problem statement clear, Ji? Yes, sir. Okay. So we draw the free body diagram for the quarter circle. So in order to calculate the hydrostatic force, what we are going to do, we are going to calculate the fluid forces on the fluid volume, so that we should be able to calculate the force P. So this is the fluid volume. We draw it with this is the fluid volume, and we are going to mention the forces acting on it. So can anyone help me with the forces here? What type of forces will be acting on this fluid volume? कोई भी स्टूडेंट इसको समझ आ रही हो, इस फ्लूइड वॉल्यूम जो मैंने ड्रॉ किया आपके सामने, इसके ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं? This is the free body diagram for the सर इसका वेट और so it is the fluid volume, free body diagram, the fluid weight enclosed by the gate. Okay जी आप मुझे बता रहे थे कुछ. There will be weight of this fluid which is acting at the centroid point. Okay, that's one force. This is the centroid, then this is the weight force or the weight of the fluid. What else? सर हॉरिजॉन्टली एक फोर्स होगी वाटर की वजह Horizontal से. force, you can call it hydrostatic force, horizontal hydrostatic force. We call it, let's say, FH. Okay, what else? Any other force? सर जो फोर्स हमने डिटरमाइन करनी है P. This is the free body diagram of the fluid volume. P जो है वो कहाँ पे एक्ट कर रही है? गेट पे. तो जब हम गेट ड्रॉ करेंगे फिर हम P ड्रॉ करेंगे. अभी तो हम फ्लूइड वॉल्यूम ड्रॉ कर रहे हैं, उसकी फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं. ठीक है सर, ठीक. इसके अलावा कोई फोर्स नहीं होगी? सर वर्टिकल फोर्स लगेगी. There will be a vertical force. Okay जी, this force on the top side. इसके अलावा जी स्टैटिक्स को थोड़ा सा सोचें. जब दो बॉडीज इसी इंटरफेस पे इंटरेक्ट कर रही होती हैं तो क्या होता है? देयर इज अ फियर ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस. ऐसा ही है. तो अगर फ्लूइड कोई फोर्स एक्ट कर रहा है गेट के ऊपर, तो इन रिटर्न जब मैं फ्लूइड की फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा तो गेट की जो फोर्स है वो फ्लूइड पे रिएक्शन में आएगी. ऐसा ही है. सो जो रिजल्टेंट एफ आर हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं फ्लूइड की फोर्स का गेट के ऊपर, तो इन रिजल्ट गेट वो फोर्स भी तो लगाएगा ना. सो देयर विल बी दिस हॉरिजॉन्टल फोर्स F1 एंड दिस वर्टिकल फोर्स F2. ऐसा भी होगा. ठीक है. यस सर. अब डायग्राम कंप्लीट हो गई ना? So यस सर. we apply equilibrium in x direction, not x, we call it let's say हमारा जो हमने एक्सिस सिस्टम ड्रॉ किया वो इस तरह से है. अगर आपको याद हो तो हमने शुरू से कहा था एक्सिस सिस्टम जो है, this will be y direction, this will be
Z direction and out of page will be X direction, right? ऐसे ही था. So submission F Y equal to 0 with right being positive. ठीक है. इससे हमें क्या मिलेगा? F1 F1 is equal to FH. और F1 है क्या? FH है क्या? Basically it is a hydrostatic force. Rho, yes sir, rho. So it is equal to not rho, gamma H C A, right? ठीक है. Yes sir. FH gamma HCA. ठीक है. Here gamma would be that of water. That is 62.4. HC किसके इक्वल होगा? HC would be equal to So 3. 3. Yes, because ये हमारे पास, अगर मैं यहाँ this is the horizontal force FH acting on the rectangular surface, and HC is the location center of the body. So this is 6 feet height. So center of this rectangle would be 6/2. So it would be equal to, or right? So A would be equal to ठीक है. Is it clear? सर वेट ऑफ द गेट जो है वो एक्स डायरेक्शन में है. Weight of the gate, वेट ऑफ द गेट जो आपने 18 लिया है. that is into the page X direction में. Yes. ठीक है. ओके सर. So calculate करेंगे इस force को, that is equal to 20,217.6. pounds. ठीक है. तो ये हमारे पास F1 या FH आ गई. Now the other force balances in the vertical direction, which is Z direction, summation F Z equal to 0 with positive side being upwards. So we can write F2 here, which is F2 basically, equals to FV plus WF. ठीक है. So F2 equals to FV plus सर weight of ऐसे the ही समझ लगे सर 3 कैसे है सर? 3 कैसे आया? सेंट्रॉइड ऑफ अ रेक्टेंगल कहाँ होता है जी? सेंटर में. सेंट्रॉइड सेंटर में ऑफ द रेक्टेंगल सेंटर में. ठीक Yes, है. sir. तो वर्टिकल साइड अगर 6 फीट है तो सेंट्रॉइड कहाँ पे होगा? सर मैं ये पूछ रहा था कि ये गेट जो है कर्व्ड है और एक डायरेक्शन में अगर इसकी विड्थ 18 है और हाइट इसकी 6 सेंटीमीटर और हम 3 ले रहे हैं, तो अगर ये कर्व के बजाय हम स्ट्रेट गेट लें तो तब भी फोर्स जो उसका इक्वेशन बन रहा है तो उसमें कर्व का कोई मतलब वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं है, तो फोर्स तो सेम दिखाई दे रहा है उससे. अगर आपको याद हो तो हमने ये जो कर्व सरफेसेस के ऊपर फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं किस सिंपलिसिटी की बेस पे कैलकुलेट कर रहे हैं? वी आर कैलकुलेटिंग इट बेस्ड ऑन द सिंपलिसिटी कि हम जी प्लेनर फोर्सेस ही कैलकुलेट करेंगे और फिर उनका रिजल्टेंट कैलकुलेट कर लेंगे. वो फोर्स होगी कर्व गेट के ऊपर. तो हम वो प्लेनर सर्फेसेस बना रहे हैं, जो प्रोजेक्शंस बन रही है इस कर्व गेट की, उन प्रोजेक्शंस के ऊपर हम ये फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं और उन प्रोजेक्शंस का फिर हम जो है वो रिजल्टेंट कैलकुलेट कर लेंगे. क्लियर है? ओके सर. तो HC तो इज लोकेशन ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ द बॉडी जिस पे फोर्स एक्ट कर रही है. ठीक है. फोर्स की अपनी लोकेशन क्या होगी वो दैट इज अनदर क्वेश्चन. So F2 equals to FV plus WF. So again FV is a vertical force and it is hydrostatic force. किसके इक्वल होगी ये?
गामा If- एच जी होगी तो इसके इक्वल, बट कुछ नजर आ रहा है आपको? बस जाहिर ये फोर्स इसके इक्वल होनी चाहिए मैग्नीट्यूड में, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? सर अगर ये हमने गेज प्रेशर लिया तो 0 होगी। इट इज एट दी सरफेस, ठीक है, तो सरफेस पे प्रेशर 0 एक्ट करेगा एंड फोर्स इज प्रेशर इनटू एरिया, सो दिस वुड बी इक्वल टू 0, so F2 would be WF. Clear? And WF would be equal to gamma of the fluid into the volume of the fluid, और volume किसके इक्वल होगी? Area of the semicircle into its width along x-axis जो बताई हुई है हमने, ठीक है? So 62.4 multiply by the area of the semi quarter circle. Quarter circle area क्या होगा? Pi r square, r is 6 divide by 4. ये quarter circle का area हो गया, multiply by 18 which is its width into the page. Clear? So F2 is 31,741.6. So 31,741.6 and the units are pound. यहाँ तक तो हमें बात समझ आ गई, बट द क्वेश्चन रिमेन्स द सेम कि P कैसे कैलकुलेट होगा, ठीक है? तो हम FR तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग दी F2 और F1 का अंडर रूट स्क्वायर करें और अंडर रूट ले लें और थीटा पे कैलकुलेट कर सकते हैं, बट दैट इज नॉट द क्वेश्चन हियर. द क्वेश्चन इज टू कैलकुलेट फोर्स P, ठीक है? सो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट फोर्स P वी ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम फॉर द गेट, ठीक है? हम इस अब पूरी जो हमारे पास गिवन बॉडी है इसकी हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं. तो इस पे अगर हम देखें तो हमारे पास यहीं पे इसके ऊपर मैं ड्रॉ करने लगा हूँ. So we are interested in calculating this force P. सर जी, जो जी. फोर्स लॉन्ग वाई एक्सिस है सर, उसमें सर हमने लिया F1 इज इक्वल टू FH प्लस P नहीं है कि सर FH के साथ, क्योंकि P सर उसके नेगेटिव साइड पे एक्ट कर रही है ये जो H के. जी जी मुझे आपका क्वेश्चन समझ आ गया. यहाँ पे हम जो फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं मेरे भाई, वो हम ड्रॉ कर रहे हैं फ्लूइड वॉल्यूम की, गेट की नहीं ड्रॉ कर रहे. समझ आ रही है बात? यस सर. स्टैटिक्स ऐसे में लगे आपने ये काम किया होगा, मैं आपको एक मिनट एक्सप्लेन करता हूँ. यस लेट्स से ये बार है आपके पास, इसके ऊपर फोर्स F1 एक एंड से एक्ट कर रही है, फोर्स F2 दूसरे एंड से एक्ट कर रही है, और मैं इसके ऊपर 3 पॉइंट्स मार्क करता हूँ, A B C. मैं आपको ये कहता हूँ सेक्शन AB की फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करें, तो आप क्या करेंगे? I ask you to draw the free body diagram for section AB. सर उसके जो उसको रिजॉल्व करेंगे और उसकी जो वहाँ पे रिएक्शन फोर्स लग रही है हम AB सेक्शन दोबारा ड्रॉ करेंगे ऐसे ही है. A पे तो जो फोर्स लग रही है F1 वो शो B करेंगे, पॉइंट पे वो भी साथ यस सर. B पॉइंट पे हम एक फोर्स अगर इस तरह शो करते हैं F2 ऐसे ही है, यस सर. और उसके फिर बैलेंस, क्योंकि B पॉइंट तो बैलेंस में है तो इसलिए उसके काउंटर भी हमें F2 शो करनी होगी, ठीक है? यस सर. तो एट एवरी पॉइंट टिल पॉइंट C हमारे पास F2 जो इसी तरह एक्ट करती जाएगी पेयर्स में, ताकि वो कैंसिल आउट हो जाए, पॉइंट इक्विलिब्रियम में शो. क्लियर है? यस इसी सर. तरह हमने अभी गेट को रिमूव किया है, उसके से जो फ्लूइड वॉल्यूम है उसकी हमने फोर्स ड्रॉ की है. लगी उसकी समझ. हम, थैंक यू सर. तो अब हम पूरी बॉडी की ड्रॉ करने लगे हैं, ठीक है? इस पूरी बॉडी की जिसमें गेट भी इंक्लूडेड है और फ्लूइड वॉल्यूम भी इंक्लूडेड है. तो अब हमें ये पता है कि इस बॉडी के टॉप पे एक फोर्स है विच इज इक्वल टू F2 ऐसे ही है, ठीक है? यस सर. यहाँ पे राइट साइड पे एक हॉरिजॉन्टल फोर्स है विच इज इक्वल टू F1 and there will be these
H Z and this will be H Y. क्लियर है? यही फोर्सेस होंगी, इसके अलावा तो कोई फोर्स नहीं होगी अब पूरी फ्री बॉडी डायग्राम के ऊपर. यस सर. This is point O. We are interested in calculating force P. तो हम सिंपली फोर्स P अगर कैलकुलेट करना चाहें, क्योंकि Hx और Hy और Hz हमें अननोन हैं, तो हम क्या करेंगे? We will apply moment about point H G. तो हम moment about H जब अप्लाई करेंगे समीशन M H, तो MH के ऊपर जो फोर्सेज हैं उनकी मोमेंट तो जीरो हो जाएगी. ठीक है, फोर्सेज एट पॉइंट है, तो वो H Z और Hy तो एलिमिनेट हो गए. हमारे पास अब जो फोर्सेज जिनके मोमेंट्स हमें कैलकुलेट करने, दिस इज F1 F2 एंड P. ठीक है, इसके लिए हमें चाहिए इनकी मोमेंट आर्म्स फ्रॉम पॉइंट H. P की तो सीधी सीधी मोमेंट आर्म कितनी है जी? 6 है सर. 6. ठीक है, F1 की क्या होगी मोमेंट आर्म 3 जी? 3 सर. 3 क्यों होगी? क्योंकि F1 सर सेंट्रॉइड पे एक्ट कर रहा है ना, तो किसके सेंट्रॉइड पे एक्ट कर रहा है? रेक्टेंगल के. नहीं, F1 रेक्टेंगल पे जरूर एक्ट कर रही है, बट इट्स लोकेशन इज सेंट्रॉइड ऑफ द प्रिज्म इट विल फॉर्म. ऐसी बात है, यही पढ़ा है हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर. यस सर. कैलकुलेशन के लिए जो सेंट्रॉइड चाहिए दैट इज सेंट्रॉइड ऑफ द बॉडी. लोकेशन के लिए जो सेंट्रॉइड चाहिए दैट इज सेंट्रॉइड ऑफ द प्रेशर प्रिज्म. समझ आ रही है बात? क्लियर है? सो क्या होगी मोमेंट आर्म? दैट वुड बी इक्वल टू ट्रायंगुलर प्रिज्म बनेगा. ऐसा ही है. तो ट्रायंगुलर प्रिज्म के लिए बॉटम से लोकेशन ऑफ सेंट्रॉइड क्या होती है? 6/3. H/3 होती है ना, तो 6/3. सो इट इज इक्वल टू 2 feet. ठीक है, समझ आ गई बात? एंड फाइनली दिस जी, ये F2 किसके इक्वल होगी? इसकी मोमेंट आर्म किसके इक्वल होगी? जीरो होगी शायद. F2 कहाँ पे होगी? 3. 3 क्यों होगी? फिर आप वही गलती कर रहे हैं. जी, F2 किस लोकेशन पे एक्ट करेगी? F2 का डिस्टेंस क्या होगा पॉइंट O से? दिस डिस्टेंस. सर 2 ही होगा. नहीं, गलत बता रहे हैं फिर. F2 विल जीरो बी तो एक्टिंग, आपको अगर याद हो कल जब परसों मंडे को हमने टॉपिक पढ़ा था आपके साथ. ठीक है, सर जीरो. एट द एंड वी wrote a statement: the non-parallel forces acting on a body in equilibrium must be concurrent and coplanar. ठीक है, these forces acting on a body should be concurrent and coplanar. concurrent and coplanar होने का मतलब क्या है कि इन सब की जो लाइन ऑफ एक्शन वो एक ही प्लेन में लाई करनी चाहिए, और सब की सब जो लाइन ऑफ एक्शन है वो एक ही पॉइंट से पास करनी चाहिए. ऐसा ही है. तो इसका मतलब Yes, sir. F2 की लोकेशन कुछ ऐसी होनी चाहिए कि इट शुड पास थ्रू द सेंट्रॉइड ऑफ द सेमी सर्कल, क्वार्टर सर्कल. ऐसे ही है. So F2 would be acting at the centroid of this semicircle. ठीक है. तो थोड़ा सा और अगर समझना चाहें तो मैं इसको ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ. थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं. आपको याद होगा जब हमने ये टॉपिक स्टार्ट किया तो आई ड्रू अ टैंक इन फ्रंट ऑफ यू. हमने ये एक वाटर टैंक है, ठीक है, इस तरह से कुछ ड्रॉ किया, और मेरा आपसे पहला सवाल ये था कि इस टैंक के बॉटम पे जो फोर्स एक्ट कर रही होगी वो किसके इक्वल होगी? टैंक की एलिवेशन जो है वो H है. तो आपने क्या बताया मुझे? फोर्स वुड बी इक्वल टू प्रेशर
into the area and that pressure is equal to gamma h. ऐसा ही है into area. ये फोर्स बताई थी आप लोगों ने मुझे। फिर मैंने आपसे पूछा जी उस फोर्स की लोकेशन क्या होगी, आपने कहा जी फॉरन से इसके सेंटर में होगी, यानी दिस ऐसा ही है। क्लियर है, ऐसे ही है। यस सर। Yes, sir. अब ये जो Yes, sir. बॉडी आपको इस तरह हाफ नजर आ रही है, दिस इज बेसिकली समथिंग लाइक ऐसे होगी पूरा। अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ फुल टैंक अगर ड्रॉ करूँ, लेट्स से इट वुड बी समथिंग लाइक दिस, ऐसे ही है। ठीक है, उसमें से हम ये वाला पोर्शन निकाल रहे हैं अपने लिए और उस पर बात कर रहे हैं। क्लियर है। अब यही फोर्स मौजूद है मेरे पास, इट वुड बी एक्टिंग एट दी, ये जो आपने हाफ डिस्टेंस कहा था, क्यों कहा था, क्योंकि इट वाज इक्वल टू दी, ये जो एरिया था इट वाज बॉटम प्लेट किस तरह की थी, इस तरह से रेक्टेंगल था। तो आपने कहा रेक्टेंगल का सेंट्रॉइड तो ये हाफ पे बनता है, जल्दी से आपने हाफ डिस्टेंस बता दिया मुझे, फोर्सेस हाफ डिस्टेंस पे एक्ट करे, ऐसे ही है। इन दिस केस द बेस वुड बी लाइक समथिंग लाइक, मैं इसको ड्रॉ करूँ आपके सामने, तो इट वुड बी समथिंग लाइक दिस, ऐसी होगी। ठीक है, और उसके ऊपर फोर्स एक्ट कर रही है। क्लियर है। Yes, sir. तो दिस डिस्टेंस शुड बी इक्वल टू देन दिस सेंट्रॉइड फॉर द क्वार्टर सर्कल। तो अगर हम फौरन से थोड़ा सा पीछे जाएं तो हमने क्वार्टर के लिए सेंट्रॉइड कहाँ डिफाइन किया हुआ है, अगर हमने जो फिगर्स दिखाई थी आपको यहाँ पे, फॉर क्वार्टर सर्कल द सेंट्रॉइड इज 4r/3π फ्रॉम आइदर साइड। ठीक है, 4r/3π। So we'll write this distance as 4r/3, yeah, 4r/3π। ठीक है, तो अब मोमेंट आर्म्स भी हमारे पास सारी आ गई, फोर्सेस भी नोन है, तो सिंपली हमने मोमेंट्स लिखनी है विद द कंसिडरेशन के पॉजिटिव कौन सी हैं और नेगेटिव सर कौन सी है। जी सर ये सेंट्रोइड का जो लोकेशन है वो तो फिक्स्ड रहता है किसी भी शेप का, लेकिन उसका जो लेंथ है वो तो हमारे रेफरेंस पे भी डिपेंड करता है कि हम कहाँ से उसको मेजर कर रहे हैं। नहीं, अभी तो हम 2 डायमेंशन में बात कर रहे हैं ना। ठीक है, तो हम 2 डायमेंशनल प्लेनर फिगर को अगर देखें तो हमने तो पॉइंट फिक्स करके उससे रेफरेंस डिफाइन किया कि सेंट्रॉइड हमेशा इस पॉइंट पे लाई करेगा फ्रॉम दिस साइड। तो अब अगर इसका रेडियस 6 से चेंज करके 8 कर देंगे तो वी आर डिफाइंड 4r/3π, तो ऑटोमेटिकली सेंट्रॉइड भी शिफ्ट होता जाएगा राइट की तरफ। ठीक है, ओके सर। सो नाउ वी जस्ट नीड टू राइट द मोमेंट इक्वेशंस। जल्दी से मुझे बता सकते हैं मोमेंट की इक्वेशंस क्या होंगी, पॉजिटिव मोमेंट्स कौन से हैं, नेगेटिव कौन से। F1 का मोमेंट पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा अबाउट पॉइंट H विद काउंटर क्लॉकवाइज मोमेंट, अगर हम पॉजिटिव कंसीडर कर रहे हैं। नेगेटिव सर। नेगेटिव होगा बिल्कुल। सो माइनस F1 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, F2 का मोमेंट पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव। नेगेटिव। सो F2 इनटू क्या बनता है 4r/3π, किसके इक्वल बनता है 4 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 3π। दैट इज इक्वल टू 2.55। ठीक है, सो 2.55 here and
P का मोमेंट क्या होगा? पॉजिटिव, नेगेटिव? P is creating a moment like this. ठीक है, तो it's a counterclockwise moment, it would be positive. So plus P into 6 equal to 0. Clear? So we just need to calculate P here, which is the only unknown. We'll multiply 20217.6, which is F1 multiplied by 2. We'll add 31741.6 multiplied by 2.55 with this, and we'll divide the answer by 6. So we get 20229.38, which is P. So P is 20230, राउंड ऑफ करके लिख देते हैं, पाउंड्स. Is it clear? Yes, sir. Any question जी? इस प्रॉब्लम के अंदर किसी को चीज क्लियर ना हुई हो? सर हम F1 को सेंट्रॉइड पे क्यों नहीं ले रहे फिर? F1 को सेंट्रॉइड पे ही ले रहे हैं. मतलब अगर F2 को सेंट्रॉइड, अगर सेंट्रॉइड ऑफ जो क्वार्टर सर्कल है, तो F1 जो है वो भी क्वार्टर सर्कल सेंट्रॉइड पे लगनी चाहिए और वो भी 4r/3 पाई होनी चाहिए. F1 is purely acting on a planar surface. ठीक है, और F2 भी सर फिर प्लेनर पे इसको थोड़ा सा ऐसे समझने की कोशिश करें. F1 is exactly in a position like, मैंने जहाँ पे आपको यहाँ समझाने की कोशिश की ना, इट इज रिलेटेड टू द वर्टिकल फोर्स ओनली. जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है उसका तो हमें कंसेप्ट बड़ा क्लियर है कि इट इज, इफ दिस इज द सरफेस, तो इसके ऊपर हम प्रेशर प्रिज्म ड्रॉ करेंगे विच इज लाइक दिस. ठीक है, इसके ऊपर एक हाइड्रोस्टैटिक फोर्स कैलकुलेट होगी, एंड दैट हाइड्रोस्टैटिक फोर्स विल बी इक्वल टू दी gamma HCA and h/3 from the bottom. ऐसा ही है. ऐसे ही है ना? यस सर. जब हमने हॉरिजॉन्टल फोर्स कैलकुलेट की तो हमें हॉरिजॉन्टल वर्टिकल फोर्स जब कैलकुलेट करते हैं तो हम तो कहते हैं वर्टिकल जो प्लेन है दैट इज, उसके ऊपर प्रेशर वेरी नहीं करता. उसके ऊपर तो प्रेशर फोर्स जो है वो इसी तरह प्रेशर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होकर आता है. उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो जिस तरह की बनती है यूनिफॉर्म. ठीक है, ऐसे हॉरिजॉन्टल के ऊपर तो प्रेशर वेरिएशन है. तो इन दैट केस हम जब यूनिफॉर्म प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन है तो फिर हम जो सेंट्रॉइड डिफाइन कर रहे हैं, जो लोकेशन डिफाइन कर रहे हैं, वो एक्जैक्टली डिफाइनिंग इट इक्वल टू दी सेंटर ऑफ द बॉडी ऑन विच दिस प्रेशर इज एक्टिंग. क्लियर है? बात यस सर, समझ गया. वर्टिकली तो हम जो वेरिएशन है क्योंकि प्रेशर की, जब बॉडी को हम वर्टिकली प्लेस करें तो प्रेशर तो वेरी कर रहा है 0 से लेकर मैक्सिमम तक. अब हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि उसकी वेरिएशन की एवरेज कहाँ बनती है, तो दैट एवरेज इज h/3 which is equal to the centroid of this pressure prism. हॉरिजॉन्टली तो हमें पता है कि जब हॉरिजॉन्टल सरफेस है तो उसके ऊपर प्रेशर परपेंडिकुलरली एक्ट करेगा और वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है क्योंकि एलिवेशन चेंज कोई नहीं है, जी के अलोंग तो चेंज ही कोई नहीं है. तो हम वहां पे लोकेशन बड़े आराम से डिफाइन करते हैं, दैट इज इक्वल टू सेंट्रॉइड ऑफ द बॉडी, नॉट द प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन, सेंट्रॉइड ऑफ द बॉडी. तो इन दिस केस बॉडी हमारी कैसी है वर्टिकल फोर्स के लिए, दैट इज अ क्वार्टर सर्कल. ठीक है, तो हमने एग्जैक्टली इसको सेंट्रॉइड पर डिफाइन कर दिया. तो वर्टिकल फोर्स के लिए तो प्रॉब्लम ही नहीं है, प्रॉब्लम हॉरिजॉन्टल फोर्स में आती है. ठीक है, सर ये हॉरिजॉन्टल का एवरेज जो है वो प्रेशर प्रिज्म के अलावा किसी और जगह पे नहीं हो सकता. नहीं, सेंट्रॉइड ऑफ प्रेशर प्रेस में ही होगा वो. ओके सर, समझ आ गई. किसी और का क्वेश्चन हो इस प्रॉब्लम के अंदर जी? अगर नहीं तो फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देन जी. जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज बेसिकली ये वो टॉपिक है जो आप ने अपने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की फिजिक्स में देखे होंगे, उन पे बात भी की होगी. तो उसको थोड़ा सा फर्दर एलेबोरेट कर लेते हैं, उसको फिर लिंक कर देते हैं स्टेबिलिटी ऑफ द बॉडी
इन अ फ्लूइड के साथ, ठीक है। वो फिर इस तरह से बियॉन्सी के कंसेप्ट जो रिलेटेड है स्टेबिलिटी ऑफ द बॉडी के साथ। बियॉन्ड फोर्स क्या होती है? द फ्लूइड फोर्स एक्टिंग ऑन अ फुली और पार्शली सबमर्ज बॉडी, ठीक है। हर बॉडी जो किसी ना किसी फ्लूइड के अंदर सबमर्ज है, चाहे फुली हो चाहे पार्शली हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एयर को फ्लूइड कंसिडर कर रहे हैं तो हम सब उसमें फुली सबमर्ज हैं, ठीक है। इसी तरह वाटर के अंदर अगर हम बॉडी को देखें तो शेप्स आपकी होगी वो पार्शली सबमर्ज होती हैं। कोई सबमरीन है तो वो किसी स्टेज पे फुली सबमर्ज होती है, किसी पे पार्शली सबमर्ज होती है, किसी को ग्राउंड पे होती है। तो हर पोजीशन के ऊपर फ्लूइड जो है वो कोई ना कोई फोर्स एक्ट कर रहा है आपकी बॉडी के ऊपर, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस बॉडी टू फ्लोट और ड्राउन इन दी फ्लूइड, एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड बियॉन्ड फोर्स। इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, वी कंसिडर रेक्टेंगुलर शेप्ड fluid volume. This is fluid volume, ठीक है। And in this fluid volume, we place a submerged body like of this shape, ठीक है। इस submerged body की जो volume है that is V, ठीक है। इस submerged body की जो अपनी volume है that is V, and this dimension of the fluid body is let's say H2 minus H1, बिकॉज इसके ऊपर हम क्या कह रहे हैं, पूरा एक फ्लूइड बॉडी है, बड़ी फ्लूइड बॉडी है, उसकी ये एलिवेशन H1 है इस पॉइंट तक, और फिर बॉटम पॉइंट H2, तो डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल इज H2 माइनस H1, ठीक है। अब अगर हम फोर्स कंसिडरेशन देखें तो इस बॉडी के ऊपर फ्लूइड हर तरफ से फोर्स एक्ट करेगा, ऐसे ही है। अगर ये हमारा फ्लूइड है तो इस बॉडी के ऊपर हर तरफ से एक फोर्स एक्ट होगी, फ्रॉम दिस साइड, फ्रॉम टॉप, फ्रॉम बॉटम, फ्रॉम लेफ्ट, and there will be a weight force of this body which is W, ठीक है। and there will be a force FB, इसको हम कह रहे हैं कि इनहेरेंटली जब भी बॉडी जो है वो फ्लूइड के अंदर जाएगी तो उसने कोई ना कोई बियॉन्ड फोर्स फेस करनी है। दिस FB इज द रिएक्शन फोर्स ऑफ दैट बियॉन्ड फोर्स, ठीक है। इज इट क्लियर? लेट्स नेम these forces as F1, F2, F3 and F4. At this point, we are interested in calculating the magnitude of FB. FB का magnitude क्या होगा? तो हम simply vertical direction में, which is the Z direction, FB अपवर्ड नहीं होता, upward ही होगा, लेकिन इस केस में हमने बॉडी को क्या किया है, एक्सक्लूड कर दिया है। जो व्हाइट रीजन है दैट इज द एक्सक्लूडेड रीजन, ठीक है। तो इस केस में हम फ्री बॉडी डायग्राम, अगेन हम रेफरेंस क्या कर रहे हैं, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं इसकी जो रिमेनिंग फ्लूइड वॉल्यूम है, ठीक है। तो इन दिस केस FB वुड बी दी रिएक्शन फोर्स। इन जनरल बियॉन्ड फोर्स जो फ्लूइड एक्सर्ट करता है बॉडी के ऊपर, लेकिन हम जिस शॉर्ट में फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं तो वो रिवर्स में ड्रॉ होगी, ठीक है। समझ आ रही है बात? ओके सर। इसको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रही है तो इसको इस थोड़ा सिंपल तरीके से मैं समझाता हूँ। ये आपकी फ्लूइड कंटेनर है, ठीक है। इसके अंदर लेट्स से आप ये एक और बॉडी है, दिस इज अ सॉलिड बॉडी, इसको सबमर्ज कर रहे हैं। जेनेरिकली स्पीकिंग आप क्या करेंगे कि FB इस डायरेक्शन में शो करेंगे, ऐसे ही है। यस सर। लेकिन मैं अब आपसे क्या कह रहा हूँ कि हम वही फ्लूइड बॉडी है, लेकिन हमने अब ये जो बॉडी है ये रिमूव कर दी है, ठीक है। अब ये एक एम्प्टी स्पेस है और इसके गिर्द जो फ्लूइड है उसकी हमने फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करनी है। तो इन दैट केस दिस बॉडी वुड बी ड्रॉइंग अ फोर्स FB, ऐसे ही है, ऑन दी फ्लूइड। यस सर। हम सिर्फ वो रिएक्शन शो करना चाह रहे हैं। So we apply equilibrium in the vertical direction, which is Z direction. Here summation F Z equals to 0 with the positive direction considered upwards. So force balance क्या होगा जी? F2 equals to F1 plus, sorry, F2 equals to F2
माइनस F1 माइनस W माइनस FB इक्वल टू 0। ठीक है, यही फोर्स बैलेंस होगा। We are interested in calculating FB, so we write FB here। एक साइड पे ले जाते हैं FB को राइट साइड पे और बाकी तमाम कंपोनेंट्स को दूसरी साइड पे। F2 माइनस F1 माइनस W। क्लियर? अब F2 और F1 किस इक्वल होंगे जी? दिस इज द फ्री सरफेस। F1 किस इक्वल होगा? सिग्मा एच ए। बेसिकली ये सिग्मा जो H1 H1 H2 क्योंकि हैं वो हमारा पैरेललोग्राम कुछ इस तरह से इसके ऊपर है। ठीक है, वो रेक्टेंगुलर बॉडी जो है वो ऐसी है, इस फ्लूइड वॉल्यूम के अंदर है। मैंने आपको थोड़ा सा, दिस इज द एक्चुअल रेक्टेंगल, ये फ्री सरफेस है आपका। दिस इज H1, this is H2 and this dimension is H2 minus H1। ठीक है, बाकी मैं कर देता हूँ। अच्छा, अब ठीक हो गया। अब आप बता सकते हैं मुझे कि क्या फोर्सेस कहाँ का एक्ट कर रहे हैं जी। F1 किस इक्वल होगा? गैमा H1 इंटू एरिया, ऐसे ही है जो भी इस रेक्टेंगुलर सरफेस का एरिया बनेगा। F2 वुड बी इक्वल टू गैमा H2 इंटू एरिया। ठीक है, ये चीज क्लियर है? Is it clear? यस सर। W, हम W की बात करते हैं। W इज बेसिकली द वेट ऑफ दिस बॉडी शोन। ये जो रेक्टेंगुलर बॉडी शोन है जिसमें से ये व्हाइट रीजन एक्सक्लूडेड है, इसका वेट है। तो ये किसके इक्वल होगा? कोई बता सकता है किसके इक्वल होगा जी? बॉडी के मास और जी के मल्टीपल के। ये जो बॉडी एक्चुअली शोन है, जो रेक्टेंगल के अंदर से व्हाइट रीजन एक्सक्लूड किया हुआ है, तो उसके बाद जो ब्लू रीजन बच रहा है, W इज द वेट ऑफ दैट बॉडी। ठीक है, दैट ब्लू फ्लूइड इज दैट इज लेफ्ट, वो वेट है। तो वो वेट कैसे कैलकुलेट होगा? इसको मैं आपको ऐसे समझाता हूँ। लेट्स से दिस इज फ्लूइड वॉल्यूम। ठीक है, दिस इज द फ्लूइड। ठीक है, ये वो रेक्टेंगल है जिसकी डायमेंशन क्या है? H2 माइनस H1, और 3 डायमेंशन में इसका जो एरिया दैट इज A। इसका वेट किसके इक्वल होगा? लेट्स से इसका वेट हम कहते हैं W1 है, दैट इज इक्वल टू गैमा इनटू इट्स वॉल्यूम, दैट इज एरिया इनटू H2 माइनस H1। ऐसा ही है? क्लियर? इज इट क्लियर? यस सर। फिर हम इसके अंदर प्लेस कर रहे हैं एक और बॉडी, जो कुछ इस शेप में है और जिसका अपना वॉल्यूम V है। ठीक है, so that volume would be replacing, कितनी वॉल्यूम फ्लूइड की रिप्लेस करेगी? लेट्स से
W2 equals to gamma into volume, ऐसा ही है. Let's say this black body has this. तो रिमेनिंग जो फ्लूइड वॉल्यूम बच जाएगा उसका वेट कितना होगा? जो ये अगर मैं ये एक्सक्लूड कर दूं इसमें से, ये वाला रीजन एक्सक्लूड कर दिया हमने, गामा v माइनस W2 ये रीजन हमने सब्ट्रैक्ट कर एक्सक्लूड रहे कर हैं. दिया. ठीक है. वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग द वेट ऑफ दिस रीजन, ये जो जिसमें व्हाइट से लिख रहा हूँ. ठीक है. वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग दिस रिमेनिंग वेट, ये जो वेट बच गया ब्लू वाला. ठीक है. So that would be equal to W, which is basically W1 total weight of the fluid volume minus the weight replaced by the body. ऐसा ही है. So W would be equal to gamma A H2 minus H1 minus gamma into volume. ठीक है. Basically gamma V is the weight of this region, ये जो region बना हुआ है. W is the weight of this region and इसको हमने कहा हुआ है W2. ठीक है. So this is equal to W2 and मैं रेक्टेंगल दोबारा से यहाँ ड्रॉ करूँ. जो रेक्टेंगुलर बॉडी पूरी फील्ड फ्लूइड के साथ दिस वन, उसका जो वेट है हमने उसको कहा हुआ है एज W1. सो वी वर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग W. क्लियर हो गया कि W किस तरह आ रहा है? यस सर. सो सिंपली जो फोर्स बैलेंस हमने लिखा है उसके अंदर वैल्यूज प्लग इन करते हैं यहाँ पे. FB इक्वल्स टू gamma H1 gamma H2 A minus gamma H1 A. तो हमारे पास gamma A कॉमन आ रहा है तो वी जस्ट राइट gamma A into H2 minus H1 F2 minus F1 की जगह तो ये आ गया सीधा सीधा माइनस W. तो W की इक्वेशन हमने अभी नीचे लिखी है, दैट इज gamma A H2 minus H1 minus gamma, तो माइनस साइन है तो साइन रिवर्स हो जाएगा यहाँ पे, माइनस gamma A H2 minus H1 plus gamma V. So these two will cancel out and we get FB equal to gamma V, which is basically the क्या है gamma V? Weight of the body. So beyond force is equal to the volume displaced by the body, volume of the fluid displaced by the body, and it acts through the center of buoyancy. सेंटर ऑफ द बुयांसी क्या चीज है? जितनी इसने फ्लूइड वॉल्यूम रिप्लेस की है, क्योंकि बॉडी फुली सबमर्ज्ड होगी तो फिर तो उसका सेंटर ऑफ बुयांसी और सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ही तरह का होगा. बट अगर पार्शली सबमर्ज्ड होगी तो फिर उसने जो फ्लूइड वॉल्यूम रिप्लेस की है वो उस पार्शियल रीजन के इक्वल होगी, नॉट द फुल बॉडी वेट के इक्वल. ठीक है. दैट्स व्हाई सेंटर ऑफ बुयांसी विल बी डिफरेंट फ्रॉम सेंटर ऑफ ग्रेविटी. इज इट क्लियर? ठीक है, समझ आ गई है जी? यस सर. सर सो जी जी सर जो बॉडी सबमर्ज होगी उसका भी सेंट्रॉइड निकालेंगे या उसी की सिर्फ लेंथ जितनी सबमर्ज है तो वो निकालेंगे? जो सबमर्ज बॉडी है विच इज पार्शली सबमर्ज, सबमर्ज से हम अगर आप ये सेंस ले रहे हैं कि कुछ फ्लोट कर रही है, ऐसा नहीं. सबमर्जेशन में हमें या तो फुली सबमर्ज होगी, यानी उसका जो टॉप सरफेस भी बॉडी का फ्लूइड के अंदर है, या पार्शली सबमर्ज होगी, टॉप फ्लूइड सरफेस जो वो बाहर है और कुछ पार्ट बॉडी का जो फ्लूइड के अंदर है. ठीक है. तो जो पार्शली सबमर्ज बॉडी होगा उसका सेंट्रॉइड और सेंटर ऑफ बुयांसी डिफरेंट होंगे. ठीक है. दैट वुड बी, इसको मैं ऐसे समझाता हूँ आपको, बेटर मैं आपको ड्रॉ करके समझा दूँ यहाँ पे. लेट्स से दिस इज अ फ्लूइड वॉल्यूम. ठीक है. और ये फ्लूइड सरफेस है, इसके अंदर हमने ये बॉडी सबमर्ज की. ठीक है. अब इस पूरी बॉडी का अपना एक वेट है, ऐसा ही है. इस पूरे जो रेक्टेंगुलर बॉडी इसका अपना एक वेट है, उसकी वजह से इसका एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा जिसको हम जी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. और एक इसने क्या किया है कि ये वॉल्यूम जो फ्लूइड ही है इसको डिस्प्लेस किया है.
ऐसे ही है। सेंटर ऑफ बियॉन्सी क्या होगा, जो इसने वॉल्यूम डिस्प्लेस किया है या रिप्लेस किया है फ्लूइड का, दैट वुड बी सेंटर ऑफ बियॉन्सी। ठीक है, जहां से बियॉन्स फोर्स जो है वो एक्ट करेगी, दैट वुड बी प्रेजेंटेड बाय लेट्स से CB, सेंटर ऑफ बियॉन्सी से हम रिप्रेजेंट कर देते हैं, CG सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, तो बियॉन्स फोर्स इस वॉल्यूम में एक्ट करेगी। अगर हम फुली सबमर्ज कर दें बॉडी को, तो इन दैट केस फिर क्या होगा, फिर तो बॉडी जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ बियॉन्सी एक ही जैसा हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गई? yes sir. ओके, तो बेस्ड ऑन बियॉन्स फोर्स हम एक प्रिंसिपल जो आपने पढ़ा भी होगा, आर्चिमेडीज प्रिंसिपल डिफाइन करते हैं। एनी ऑब्जेक्ट कंप्लीटली और पार्टली सबमर्ज्ड इन अ फ्लूइड एक्सपीरियंसेस एन अपवर्ड बाउंड फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। जैसे अभी हमने कैलकुलेट किया, दैट इज FB इक्वल्स टू गामा इनटू द वॉल्यूम, सो वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। एंड सेंटर ऑफ बियॉन्सी इज द सेंट्रॉइड ऑफ द डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम थ्रू व्हिच बियॉन्ड फोर्स एक्ट। जो वॉल्यूम उसने रिप्लेस किया है फ्लूइड का, इसको डिस्प्लेस किया है, सेंटर ऑफ बियॉन्सी जो उसके सेंट्रॉइड के इक्वल होगा उस वॉल्यूम के। तो इस के ऊपर हम फिर एक्सप्लेन करते हैं बियॉन्ड फोर्स और सेंटर ऑफ बियॉन्सी के ऊपर बॉडी की स्टेबिलिटी। जस्ट थोड़ा सा उसको क्विकली रिव्यू करें तो आप स्टेबल बॉडी किसको कहते हैं, कोई भी बॉडी जिसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन को डिस्टर्ब किया जाए तो वापस उसी पोजीशन पे आ जाए तो उसको हम कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। ऐसे ही है। जेनेरिकली स्पीकिंग कि हम इसको ये कहते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी वापस अपनी पोजीशन पे रिस्टोर हो जाए तो दैट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। ऑन दी अदर हैंड हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं, कि कोई भी बॉडी जिसको हम अगर उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्टर्ब करें तो उसकी जो न्यू पोजीशन है वो उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं थी, दैट वाज नॉट इट्स ओरिजिनल इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो दैट इज इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, उसने अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रिस्टोर नहीं किया। तो इसी को अगर सबमर्ज बॉडी के तौर पे देखना शुरू कर दें, लेट्स से वी हैव अ कंप्लीटली सबमर्ज बॉडी व्हिच हैज अ सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिलो द सेंटर ऑफ बियॉन्सी, तो इन दैट केस इट विल बी स्टेबल बॉडी। ठीक है, कोई भी अगर बस कंप्लीटली सबमर्ज बॉडी है और अगर उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिलो द सेंटर ऑफ बियॉन्सी है, तो इन दैट केस the body will be said to be in equilibrium। क्यों इक्विलिब्रियम में होगी, तो ऐसे समझते हैं, इसको बोर्ड पे ले जाते हैं। ये आपकी वो बॉडी, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिलो और सेंटर ऑफ बियॉन्ड सुपर, और ये पूरी तरह सबमर्ज है लिक्विड के अंदर। अब हमने इसको एक डिस्टर्बेंस दी विच इज क्लॉकवाइज डिस्टर्बेंस, हमने इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फेंकने की कोशिश की, तो अगर तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होती थी तो गिर जाती। ठीक है, बट इफ इज इन स्टेबल पोजीशन तो इसको वापस आना चाहिए अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे। हम देख रहे हैं कि ओरिजिनली इसका सेंटर ऑफ बियॉन्सी ये है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी एग्जैक्टली इसके नीचे लाई कर रहा है। ठीक है, विच इज यहाँ पे वेट एक्ट कर रहा है, यहाँ पे सेंटर ऑफ बियॉन्ड फोर्स एक्ट कर रही है। जब हमने इसको डिस्टर्बेंस दी इस तरह से, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो यहीं पे रहा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो चेंज नहीं होता, लेकिन क्योंकि बॉडी ने कुछ वॉल्यूम डिस्प्लेस किया तो उसका सेंटर ऑफ बियॉन्सी थोड़ा सा राइट को शिफ्ट कर गया। तो अगर हम जस्ट इसको ऐसे देखें एज अ कपल, तो ये जो कपल बन रहा है ये किस तरह का मोमेंट जनरेट करेगा, इट विल बी जनरेटिंग अ मोमेंट लाइक दिस। ऐसे ही है, ठीक है, ऐसे ही है। सो दिस मोमेंट इज एक्टिंग अगेंस्ट ओवर डिस्टर्बेंस, जो डिस्टर्बेंस हमने दी थी उसके अगेंस्ट एक्ट कर रहा है, इसको रीस्टोर करने की कोशिश कर रहा है, इसको काउंटर एक्ट कर रहा है। सो द बॉडी विल रीस्टोर इट्स ओरिजिनल पोजीशन, so that's why it is in stable equilibrium। So whenever center of gravity is below the center of buoyancy for a fully submerged body, the body will said to be in stable equilibrium। on the other hand, इसी का दूसरा केस है हमारे पास कि जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो अबव है सेंटर ऑफ बियॉन्सी के, तो इन दैट केस क्या होगा, इस केस को देखें अगर, अब इसी के अंदर हम देख रहे हैं कि ओरिजिनली सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाज अबव। ठीक है, यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी है बॉडी का जहाँ पे उसकी वेट की फोर्स एक्ट कर रही है, एंड हेयर वी हैव इन लाइन द सेंटर ऑफ बियॉन्सी जहाँ पे बियॉन्ड फोर्स एक्ट कर रही है। We disturb this body with a disturbance like this,
तो जब हमने डिस्टर्ब किया तो अगेन द बॉडी ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ इट्स वेट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो डिस्टर्ब नहीं होगा, अपनी पोजीशन में रहेगा, बट सेंटर ऑफ बियॉन्सी विल चेंज इट्स लोकेशन। ठीक है, तो सेंटर ऑफ बियॉन्सी थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो गया एंड वेट वाला पार्ट जो वो अपनी जगह पे रहा है। तो अगेन अगर हम इसकी कपल फॉर्म देखें तो ये जो कपल बन रहा है दैट इज ड्रॉइंग अ मोमेंट लाइक, किस तरह का मोमेंट ड्रॉ कर रहा है जी? अ मोमेंट दैट इज एडिंग ओवर डिस्टर्बेंस, ऐसे ही है, इस तरह मोमेंट जनरेट होगी। तो ये तो हमारी डिस्टर्बेंस को एड कर रहा है, तो इसका मतलब बॉडी जो है फर्दर अपने आप को रिस्टोर नहीं कर सकेगी बल्कि ओवरटर्न कर जाएगी। सो द बॉडी वुड बी सेड टू बी विल बी सेड टू बी इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इज इट क्लियर? समझ आ रही है भाई? यस सर। इसी में फर्दर हम आगे चलते हैं, वो डिफाइन कि जी अरे कपल जो एक्ट कर रहे हैं कौन से act? सॉरी आपकी आवाज कट गई, आप क्या कह रहे हैं? सर अगर ये कपल एक्ट करे, कपल फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं तो ये कौन सी एक्सिस पे कर रहे हैं? अगर रोटेशन का हो रही है तो वो तो इन लाइन हमें नजर आ रहा है इधर से। कपल फोर्सेस कौन सी होती हैं? दैट इज ऑलवेज एंटी पैरेलल बट देयर लाइन ऑफ एक्शन इज पैरेलल। ठीक है, फोर्सेस खुद जो हैं वो इस तरह से हैं, दे विल बी एक्टिंग ऑन दिस, जहां पे बॉडी को आपने रोटेशन दी जिस पॉइंट के अबाउट। ठीक है, तो कपल उसी पॉइंट के अबाउट ओवरटर्निंग या रिस्टोरिंग करेगा। क्लियर है? सर इसका मतलब ये है कि बॉयंट फोर्स का जो सेंटर है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, वो मतलब एक लाइन पे नहीं है, होंगे वो डिफरेंट पोजीशंस पे होंगे। ओरिजिनली जब बॉडी स्टेबल होगी ना, अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में होगी, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी एज वेल एज बियॉन्ड फोर्स शुड लाई इन अ स्ट्रेट लाइन। जैसे आपको नजर आ रहा है दोनों केसेस में, यहाँ पे नजर आ रहा है कि दोनों स्ट्रेट लाइन में है, एक ही लाइन के ऊपर है, ऐसे ही है, यहाँ पे भी एक ही लाइन के ऊपर है। बट जैसे ही आपने डिस्टर्बेंस दी तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी और द सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो नहीं कहता उसको, सेंटर ऑफ बियॉन्सी विल शिफ्ट। ठीक है, क्योंकि डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम जो है फ्लूइड की वो चेंज हो रही है। तो जैसे ही सेंटर ऑफ बियॉन्सी शिफ्ट होगा तब उनकी दरमियान एक कपल जनरेट होगा, विच इज बेसिकली, अगर आप इसको यूं देखें तो इस लाइन ऑफ एक्शन के अक्रॉस होगा। ठीक है, यहाँ पे वो इस लाइन ऑफ एक्शन के अक्रॉस कपल जनरेट होगा। तो वो जो कपल है फिर आपके ओरिजिनल डिस्टर्बेंस को एड करता है या उसको वो रिएक्ट करता है, दैट डिपेंड्स ऑन कि सेंटर ऑफ बियॉन्सी अपवर्ड्स था या सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, ओके सर। सर ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ बुओयांसी सेम किस कंडीशन में होते हैं, यानी दोनों एक कब होते हैं? दोनों एक ही पॉइंट के ऊपर आ जाएं एग्जैक्टली। यस सर। शायद सर जब फ्लूइड ऊपर और नीचे सेम अमाउंट में हो। इसको मैं ऐसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ, बिकॉज बियॉन्ड फोर्स का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है? इट इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड इट हैज डिस्प्लेस्ड। ऐसे ही है, ये चीज तो समझ आ रही है ना आपको? इट इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड इट हैज डिस्प्लेस्ड, गैमा वी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है? बेसिकली मैस सेंटर, जितनी भी मैस है बॉडी की उस सारे के सारे का सेंटर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो अगर किसी तरह मेरी बॉडी ऐसी है कि जितनी वॉल्यूम वो डिस्प्लेस करे, फ्लूइड वॉल्यूम, तो फ्लूइड की उस वॉल्यूम का जो वेट है वो एग्जैक्टली उसी तरह हो जैसे कि बॉडी का एक्चुअल वेट है। यानी बॉडी, अगर मैं पानी के अंदर पानी ही की तरह की कोई बॉडी बनी हुई फेंकूं, सबमर्ज करूं, तो फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो एग्जैक्टली सेंटर ऑफ बियॉन्सी के ऊपर लाई करेगा। समझ आ रही है बात? यस सर, समझ आ गया। तो एग्जैक्टली उसी डेंसिटी की बॉडी हो जिस डेंसिटी का मेरे पास फ्लूइड है जिसके अंदर मैं उसे सबमर्ज करने जा रहा हूँ, तो इन दैट केस वी मे हैव सेंटर ऑफ बियॉन्सी एग्जैक्टली ऑन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी। ठीक है, सर ठीक है अगर सर। डेंसिटी कम होगी तो सर वो सेंटर ऑफ बियॉन्सी अपवर्ड हो जाएगी। दैट डिपेंड्स। लेकिन दोनों सिनेरियो हमने आपके सामने डिस्कस किए हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोअर कब होता है जी? एक बॉडी है आपके पास किसी भी डायमेंशन की,
लेट्स से दिस इज द बॉडी, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसके आप कहेंगे सेंटर पे लाई करता है, ऐसे ही है। इसी तरह की मैं बॉडी Yes, sir. बनाता हूँ, बट उसको कुछ इस तरह से करके मैं बना देता हूँ। और इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी किस तरफ होगा? थोड़ा सा राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, मैथ ज्यादा राइट की तरफ, ऐसे ही है। Yes, sir. अब इसी तरह की एक बॉडी है, उसको मैं ऐसे समझ लेंगे, ये है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होगा? सेंटर में होगा, ऐसे ही है। इसी बॉडी को अगर मैं थोड़ा सा शेप Yes, कर sir. दूं इस तरह से करके, तो इस बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? नीचे की तरफ, ऐसे ही है। और इसी बॉडी को अगर मैं शेप कर Yes, दूं sir. इस तरह से करके, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट हो जाएगा अपवर्ड्स, डिपेंडिंग अपॉन किसकी जो डेंसिटी और यूनिफॉर्मली Yes, sir. डिस्ट्रीब्यूटेड। तो दैट डिपेंड्स ऑन द डायमेंशन और शेप ऑफ द बॉडी, कि बॉडी की शेप किस तरह से, ठीक है। सेंटर ऑफ बियॉन्सी तो डिपेंड करेगा Yes, sir. वो बॉडी कितनी फ्लूइड वॉल्यूम डिस्प्लेस कर रही है, ठीक है। Yes, सेंटर ऑफ sir. ग्रेविटी यूजुअली हम सेंटर पे अगर यूनिफॉर्म शेप की बॉडी है, रेक्टेंगुलर बॉडी है, उसका वेट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो दैट इज एट द सेंटर, डायगोनल्स की क्रॉस सेक्शन पे होगा, इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। तो इस तरह से, तो इसकी एक फर्दर हम अगर एलेबोरेशन देखें, अभी हमने देखा कि हमने कहा जी अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिलो है और सेंटर ऑफ बियॉन्सी अबव है तो बॉडी स्टेबल होगी। अभी हम देखते हैं इसकी वायलेशन। अगर हमारे पास एक वाइड बॉडी है, जिसमें वाइड बॉडीज के अंदर क्या होता है यूजुअली, देयर सेंटर ऑफ ग्रेविटी विल बी लोअर, ठीक है। जितनी बॉडी चोरी उतना सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ आता जाएगा, ठीक है। इन दिस केस सेंटर ऑफ बियॉन्सी इज ऑल्सो बिलो, ठीक है। बट ये भी स्टेबल इक्विलिब्रियम में हो सकती हैं। जैसे कि आपको नजर आ रहा है केस ये यही बन रहा है जो हमारे पास ऊपर अभी हमने पढ़ा, जहाँ पे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। बट ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्यों होंगे? क्योंकि जब आप इसको डिस्टर्ब करेंगे तो इसका सेंटर ऑफ बियॉन्सी किस तरफ शिफ्ट होगा? राइट की तरफ, ठीक है। इस केस में सेंटर ऑफ बियॉन्सी कहाँ शिफ्ट हुआ था? लेफ्ट की तरफ, ठीक है। समझ आ रही है बात? तो ये इसलिए स्टेबल होंगे, फिर ये रिस्टोरिंग कपल जनरेट करेगी। तो अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी अबव है सेंटर ऑफ बियॉन्सी से, और हम डिस्टर्बेंस जनरेट करते हैं, एंड दैट डिस्टर्बेंस शिफ्ट द सेंटर ऑफ बियॉन्सी टुवर्ड्स द राइट ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, देन द बॉडी विल बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। समझ आ गई ये स्टेटमेंट आपको? सर रिपीट कर दो। जेनेरिकली अभी हमने देखा कि जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी अबव है और सेंटर ऑफ बियॉन्सी बिलो है, तो बॉडी को हमने कहा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। ये चीज समझ आ रही है ना आपको? जी सर। Yes, बट sir. उसी की अभी हम एक वायलेशन देखने लगे हैं कि अगर बॉडी वाइड हो बहुत ज्यादा, उसका जो सरफेस एरिया है फ्लूइड के ऊपर आ रहा है वो बहुत ज्यादा हो, तो दैट कैन बी स्टेबल। वो स्टेबल किस लिए होगी? इफ दैट इज एबल टू जनरेट अ रिस्टोरिंग कपल। और वो रिस्टोरिंग कपल कैसे जनरेट होगा? कि जो हमने जेनेरिक केस देखा यहाँ पे ऊपर, ये जिस फिगर को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इस फिगर के अंदर जो हमने केस देखा, इसमें क्या हुआ? जब हमने इसमें डिस्टर्बेंस दी तो सेंटर ऑफ बियॉन्सी किस तरफ शिफ्ट हुआ था? लेफ्ट की तरफ, ऐसे ही है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी पहले अलाइनमेंट में थे, फिर लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो गया जब हमने डिस्टर्बेंस दी। तो उसकी वजह से जो कपल जनरेट हुआ दैट वाज ओवरटर्निंग कपल। वाइड बॉडी के केस में क्या होगा? जब हम डिस्टर्बेंस देंगे, जब हम बॉडी को टिल्ट करने की कोशिश करेंगे, तो फिर क्या होगा कि बॉडी की जो वॉल्यूम जो डिस्प्लेस करेगी वो ज्यादा डिस्प्लेस करेगी। तो इन दैट केस सेंटर ऑफ बियॉन्सी विल शिफ्ट टुवर्ड्स राइट। इस केस में आप देख रहे हैं राइट की तरफ शिफ्ट हो गया। तो जैसे ही वो राइट की तरफ शिफ्ट होगा दैट विल जनरेट अ रीस्टोरिंग कपल। बजाय वो ओवरटर्निंग कपल के रीस्टोरिंग कपल जनरेट करेगा, तो बॉडी जो है वो स्टेबिलिटी की तरफ जाएगी। So we can say that for a wide floating body, whenever center of buoyancy shifts towards the right of the center of gravity and the center of gravity is above the center of buoyancy, the body will be in stable equilibrium. Center of gravity above हो center of buoyancy के, और body जब हम disturbance generate करें तो center of buoyancy जो shift हो जाए right की तरफ center of gravity के, तो body will be in stable equilibrium. Clear? यस सर। इसी का ऑपोजिट देखते हैं कि अगर कोई सिलेंडर बॉडी है वो फ्लोट कर रही है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो ऑब्वियसली अबव ही होगा। बट अगर हम इसको डिस्टर्ब करें तो हम ये देखेंगे इसका सेंटर ऑफ बियॉन्सी जो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। एंड इन दैट केस इट विल बी जनरेटिंग अ ओवरटर्निंग कपल एंड द बॉडी विल बी इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये क्लियर है?
यस सर। ओके, आज के इस टॉपिक के अंदर कोई क्वेश्चन हो आपका? सर ये सेंटर ऑफ बायोंसी जो है तो ये राइट लेफ्ट किस रीजंस की वजह से जाती सेंटर ऑफ बायोंसी डिफाइन कैसे कर रहे हैं? है? जो वॉल्यूम वो जो डिस्प्लेस वॉल्यूम कर रही है। डिस्प्लेस कर रहा है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे ड्राइंग पे। लेट मी ड्रॉ हियर। इनिशियली आपका रेक्टेंगल इस तरह से था, ठीक समझे, ठीक है। और इसके अंदर हमने जो बॉडी है उसने ये वाला फ्लूइड डिस्प्लेस किया। सॉरी, मैं इसको ब्लू कलर, इट इज डिस्प्लेसिंग दिस फ्लूइड वॉल्यूम जो ठीक है, ये फ्लूइड वॉल्यूम उसने डिस्प्लेस किया। बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी में ब्लैक लाइन से ड्रॉ कर रहा हूँ। बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा? इन दो लाइनों की इंटरसेक्शन, ऐसे ही है। क्लियर? दिस विल बी सेंटर ऑफ gravity. On the other hand, green lines जो represent कर रही हैं center of buoyancy, ठीक है। That would be basically intersection of this fluid volume, जो ये rectangular fluid volume है, ठीक है। So this is your center of buoyancy. Clear? अब मैंने क्या किया, बॉडी को थोड़ा सा टिल्ट कर दिया। मेरी बॉडी जो है वो बजाय इस तरह के थोड़ी सी and let us see, वो fluid level तो straight ही रहेगा। This is the fluid level, ठीक है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा इस बॉडी का? अगेन ब्लैक लाइन से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। दैट वुड बी उसी इंटरसेक्शन जगह ऑफ, पे होगा सर। ठीक है, एग्जैक्टली उसी जगह पे आ जाएगा। राइट, उसी जगह पे आ रहा है। बट सेंटर ऑफ बियॉन्सी क्या करेगा? जिस तरफ वेट ज्यादा शिफ्ट होगा उसी तरफ शिफ्ट होगा। है तो वो वेट ही की रिप्रेजेंटेशन ना। यस। तो इट वुड बी शिफ्टिंग, अगर ओरिजिनल पॉइंट ये था बियॉन्सी का, इट वुड बी शिफ्टिंग टुवर्ड्स दिस साइड, राइट, क्योंकि वेट अब इस तरफ, फ्लूइड का वेट जो है वो ज्यादा इस तरफ शिफ्ट हो गया है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ बियॉन्सी मैस कंसंट्रेशन जिस तरफ ज्यादा हो जाएगी उसी तरफ सेंटर ऑफ बियॉन्सी भी शिफ्ट करेगा, बिकॉज ऑफ मोर वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड इज इन दिस पार्ट, तो वो इस तरफ शिफ्ट हो गया राइट की तरफ, ठीक है। अगर इसी तरह हम इसको लेफ्ट को टिल्ट करते तो ये लेफ्ट को शिफ्ट हो जाता, ठीक है।